gross margin, return on inventory management. Now, for understanding this gross margin, return on inventory management, let us discuss about return on assets. रिटर्न ऑन एसेट क्या है? सीधी सी बात है, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न। यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अल्टीमेटली अभी जो हमने ये पूरा डिस्कस किया लेवल्स ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस लेवल्स ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन? Simply in order to classify our merchandise, a retailer will classify its merchandise so that inventory can be managed well. This was the main objective of classifying this or understanding this levels of buying organization. Now, next objective is simply to define the gross margin return. Ultimately, if we are managing this entire inventory, so on what basis or what is the main objective that needs to be considered? It is the performance of any retail operations. Now, performance on any retail operation can be understood by the one metrics or one parameter which is called return on asset. So, return on asset is one such parameter. Now, we also have understood the previously we understood the strategic profit model. So, for any organization, the strategic profit model is very important, because in the entire strategic model we understood that we are integrating all the components with the way which we can which can actually help us to understand the utilization of the resources. Means how a company or a retail organization is utilizing its resources in order to convert what to say, in order to provide profitability, in order to get a higher profit margin. We can understand from this that a strategic profit model is actually combining all this thing, that is the profit margin ratio. प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या है वो चीज़ समझाने के लिए कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी सीधी सी बात है, द वे कंपनी यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट मार्जिन रेशियो. नेक्स्ट, the return on equity it is providing to the shareholders, it is also a good indicator. Means what type of return on equity it is providing? Ultimate, it is the shareholders maximization, shareholders wealth maximization is the main concern. So return on equity is the another parameter. Next is leverage. So strategic profit model rests on all this combination approach, right? So now, which is so we understood that SPM, which is based on return on assets, to evaluate and compare the performance of store managers across the chain. But SPM is not the only tool for evaluating the performance of merchandise managers. SPM is not the only tool. We understood the SPM model. SPM model is one such where we are understanding the utilization level of resources and we are trying to evaluate the performance of merchandise managers. So these are basically models, or these are basically the parameters through which we can understand the performance of a merchandise manager. But SPM is not the only tool. This is because merchandise managers and purchasers only have control over the gross margin and investment, but not on operating expenses and other assets. See, the merchandise manager, it is very important. This segment is very important. The merchandise managers and purchasers only have the control over the gross margin. So they will only have the control over the gross margin and investment. उनका तो मेनली ग्रॉस मार्जिन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल एक परचेस कर रहे हैं, तो वहां से क्या ओवरऑल एक ग्रॉस मार्जिन आ रहा है उस पर ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं वो देखेंगे, बट नॉट ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अदर एसेट. But merchandise managers and purchasers actually cannot control the operating expenses. So I'm writing it over here, not on operating expenses and other assets. Right? Therefore, using performance evaluation tools or ratios that are based on ROI would be more effective for measuring the performance of merchandise or merchandise manager instead of SPM, which is based on return on asset. So here we are not using SPM model because SPM model is mainly based on return on asset. SPM model is mainly based on return on asset. So this is the main
concept over here that SPM considers the return on asset. Fine. Whereas we need to understand, since merchandise managers cannot control assets, so they need to understand the return on investment, because merchandise managers are directly or indirectly investing. They are looking after the investment in the entire inventory. So it is more appropriate that we use some metrics which is based on return on investment rather than return on asset. Fine. Gross margin, return on inventory management. So we will be using GMROI. That is gross margin return on inventory management. Right? Gross margin return on inventory is one of the popular financial ratios used by the retailers to measure the performance of investment in inventory or merchandise. This is one such technique that is used by the retailer, to measure the performance of investment in inventory or merchandise. GMROI gives the number of rupee earned by the retailer on every rupee invested in inventory. See, what does GMROI will give us? GMROI will give us gives the number of rupee earned for every rupee इन्वेस्टेड. आपने 1 रुपया लगाया तो 1 रुपया लगा इन्वेस्ट जो किया उस 1 रुपये पे आपने कितना कमाया. दिस इज व्हाट GMROI इज एक्चुअली. The gross margin return on inventory management will give the number of rupee earned by the retailer on every rupee invested in inventory. So every rupee invested in inventory, forgot to write this, ये भी important है इन्वेंट्री लिखना, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें कि ऐसा हो जिससे हमारा इन्वेंट्री पे खर्च कम हो और इन्वेंट्री से हम लोग को इन्वेंट्री क्या अल्टीमेटली दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स हो किसी भी तरह की. तो यहाँ पर सिंस इट्स अ रिटेलर, यहाँ पर फिनिश गुड्स की ही इन्वेंट्री रहती है. तो इन्वेंट्री पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेंट्री को कितना मेरा कितना ब्लॉकेज रह रहा है अल्टीमेटली, उससे मुझे क्या मतलब 1 रुपये का अगर इन्वेंट्री मैंने खरीदा उसे क्या रिटर्न जनरेट हो. दिस इज व्हाट GMROI talks about, right? So in other words, GMROI informs the retailer how much he got back from the inventory investment in a year. सीधी सी बात है, आपने 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उस पर क्या रिटर्न आपको जेनरेट हुआ उसके बारे में यहाँ पर GMROI हमें बताते हैं. ठीक है. नाउ सो GMROI is equals to gross margin percentage multiplied by sales to inventory ratio, right? That is we can also say GMROI is equals to gross margin divided by net sales multiplied by net divided by average inventory. हम बोल सकते हैं सिंपली ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें बात बरोबर ही है. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो. यहाँ पे जो बता रहे हैं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज क्या है. अब ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालना मतलब क्या हो गया, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, वो आपका हो जाएगा ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो. सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. फाइन. अब इसको हम ग्रॉस टोटल अगर हम बोले तो इसको ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं. सो द एवरेज इन्वेंट्री यूज्ड इन GMROI कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ रिटेल प्राइस और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. देखो दोनों तरीके से ही हम लोग इसको दिखा सकते हैं.
आइदर इन टर्म्स ऑफ रिटेल प्राइस, जो कि अभी हमने देखा रिटेल प्राइस, और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. Though some retailers express average inventory at retail price, many retail express the average inventory in terms of cost. देखो, ये जो हम लोग GMROI का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये दो तरीके से ही हम लोग कर सकते हैं. आइदर वी कैन डू इट इन अ रिटेल प्राइस में इसको कर सकते हैं, और इन दी कॉस्ट प्राइस मॉडल, और या तो हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस में भी कर सकते हैं. फाइन, ये हो गया. सो अगर हम लोग GMROI को कॉस्ट में करते हैं, GMROI इज इक्वल्स टू ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. को ऊपर में हमने रिटेल प्राइस को लिया था, सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो, नेट सेल्स को लेकर कर रहे थे. यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को लेकर कर रहे हैं. दैट इज ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट. ठीक है, तो वी कैन डू इट लाइक दिस, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज. ठीक है, ये हुआ. नाउ GMROI फॉर एनीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड. अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जब हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाए. इसको ले, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं मर्चेंडाइज कैटेगरी. हम एनुअल सेल्स इन रुपीस, मैं इन रुपीस नहीं लिख रही हूँ. एवरेज इन्वेस्टमेंट एट, ठीक है, इन रुपीस है, एवरीथिंग इज इन रुपीस. सेल्स टू स्टॉक रेशियो, then ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है. देन ग्रॉस मार्जिन इन रुपीस. ठीक है, फिर आपका हो गया GMROI एंड GMROI परसेंटेज. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैं इसका GMROI की कैलकुलेशन दिखा रही हूँ. सो लेट्स से मर्चेंडाइज कैटेगरी जो है वो है X, कोई भी एक कैटेगरी ले लिया हमने X. इसने एनुअल सेल्स जो दिया है वो दिस इज 6,50,000. ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट, एवरेज इन्वेस्टमेंट था आपका 1,30,000. ठीक है, नाउ सेल्स टू स्टॉक रेशियो. अब सेल्स टू स्टॉक रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? सेल्स टू स्टॉक रेशियो में हम लोग सिंपली 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. दैट इज एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट करेंगे. ठीक है, एवरेज तो यहाँ सेल्स टू स्टॉक रेशियो में जस्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रही हूँ, तो वी आर गेटिंग इक्वल्स टू 5. 6,50,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 करोगे 5 आएगा. ठीक है, नाउ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज. अब हम लोग निकाल रहे हैं ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज सिंपल सी बात है, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होता है. तो यहाँ पर हम लोग का ग्रॉस मार्जिन जो है दिस इज 40%. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, ग्रॉस मार्जिन इज, अब ग्रॉस मार्जिन जो हमारा आ रहा है ये ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज गिवन. तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो हम लोग का क्या होगा, ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन क्या होगा? अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो ग्रॉस मार्जिन इसका मतलब कितना हुआ हमारा, कैसे निकालेंगे? एनुअल सेल्स कितना है? 6,50,000. 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस मार्जिन निकाला हमने, इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 4.
इज इक्वल्स टू 2,60,000। देखो ग्रॉस मार्जिन वॉज गिवन, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज वॉज गिवन, मतलब एक रिटेलर इतना मार्जिन रखता है। सो व्हाट विल बी द एग्जैक्टली ग्रॉस मार्जिन इन एब्सोल्यूट टर्म इन रुपीज वैल्यू, कैसे निकालें? तो 1 दैट इज एनुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस मार्जिन 2,60,000, ठीक है। अब हम लोग आ जा रहे हैं GMRI कैलकुलेशन में। तो ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, कॉलम 5 जो है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग। कॉलम 5 में क्या है हमारा, ग्रॉस मार्जिन निकला डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, वो हो गया हमारा ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो इट विल कम टू अराउंड 2, आंसर आएगा 2। देखो ग्रॉस 5 में क्या है, ग्रॉस मार्जिन हमारा ग्रॉस, ये क्या है GMROI, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस मार्जिन के संग कैलकुलेशन हो गई इन्वेस्टमेंट की। देखो जिसका जिसके संग है, देखो उसके संग कैलकुलेशन हो रहा है। तो GMROI आ रहा है हमारा 2। तो अब हम लोग का निकालना है GMROI इन परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारा परसेंटेज निकला सेल्स टू स्टॉक रेशियो दैट इज 3 multiplied by 4. So we are getting it's equals to 200%. 3 GMROI जो हमने निकाला, सेल्स टू स्टॉक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। सेल्स टू स्टॉक रेशियो कितना है और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कितना है, वो हमारा निकला GMROI इन परसेंटेज। क्लियर है? मैम ये पर फिर से समझा दो। मुझे ना, हाँ अच्छा मैं समझा दे रही हूँ फिर से। देखो ये हमने एक टेबल लिया, वी हैव जस्ट टेकन अ टेबल, ठीक है, in order to calculate the GMROI. GMROI is gross margin return on investment. We understood this. So this is just a table जहाँ पे merchandise category, let us take this an example कि कोई भी category है, category है X. So category is X, X एक product है। अब उसकी जो details दी हुई है, annual sales is given and average investment at cost is given. Fine. So these two are given. Gross margin percentage is also given. ये तीन चीज दी हुई है। Annual sales is 6,50,000. Average investment at cost is 1,30,000. ठीक है। Now you have to find sales to stock ratio. Now in order to find sales to stock ratio, कितना stock था और कितना sales हुआ, रेशियो में हम क्या करते हैं, वॉट एवर वी वुड लाइक टू फाइंड, वी विल जस्ट टेक द रेशियो अमॉन्ग देम, उन दोनों में ही तो रेशियो निकालेंगे ना। तो यहाँ क्या है, 1 है हमारा एनुअल सेल्स, कितना सेल्स है, और ये हमारा है एवरेज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया एट कॉस्ट एकदम। तो यहाँ पर हमें निकालना है सेल्स टू स्टॉक रेशियो, सेल्स टू स्टॉक रेशियो में निकालना है। तो सेल्स टू स्टॉक रेशियो मतलब क्या, सेल कितना हुआ ये हो गया पहला, और स्टॉक कितना हमने खरीदा। तो सीधी सी बात है, इसका रेशियो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, सेल्स टू स्टॉक रेशियो 1/2 आया ये। 6,50,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर हुआ, सेल्स टू स्टॉक रेशियो। अभी आ गया ये ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज गिवन। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज क्या है, इट इज ऑलरेडी गिवन। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन फॉर एनी प्रोडक्ट लाइन और एक क्या बोलते हैं, एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हम। हाँ बोलो। बोल रही हूँ 1/2 जो हुआ, तो ये एक्चुअली 6,50,000 डिवाइडेड बाई 1,30,000 ऐसा होगा। तो हाँ हाँ आपने खाली वो कॉलम नंबर डिवाइड कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे इतनी जगह नहीं हो रही ना। नहीं मैं समझ गई। चलो चलो इसके बाद देखो ग्रॉस मार्जिन जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रख रही है, वो परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या हो गया, परसेंटेज के बाद हुआ ग्रॉस मार्जिन। तो ये परसेंटेज जब दिया हुआ है, ये तो परसेंटेज में गिवन है, तो ग्रॉस मार्जिन आपको निकालना है। व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन, ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन क्या है वो हमको देखना है। तो ग्रॉस मार्जिन में हमने क्या, जब परसेंटेज दिया हुआ है तो मेरा ग्रॉस मार्जिन क्या निकलेगा इन एब्सोल्यूट टर्म और इन रुपी वैल्यू, जब हम निकालेंगे रुपए की वैल्यू में निकालनी है ना। तो एनुअल सेल्स
मल्टीप्लाइड बाय जब ग्रॉस मार्जिन निकालोगे, मतलब एनुअल सेल्स का ग्रॉस मार्जिन 40%, तो 6,50,000 इज माई एनुअल सेल्स, उसका 40% निकालेंगे, वही तो हमारा ग्रॉस मार्जिन होगा। तो इन एब्सोल्यूट टर्म तो वही होगा ना, मेरा एनुअल सेल इतना रुपए का सामान बेचा, उसमें मेरा मार्जिन है 40%, तो जितना बेचा मैंने उसका 40% निकालेंगे तो वो ग्रॉस मार्जिन हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया, समझ आया? ये वाला समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब हम लोग आ जा रहे हैं ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना आया? 2,60,000। दिस इज कॉलम 5 डिवाइडेड बाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1,30,000। GMROI इज ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस मार्जिन 2,60,000 है, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो देखो सीधा सा इसको मैं इजी करके समझा रही हूँ, GM डिवाइडेड बाय ROI। तो GM ये है डिवाइडेड बाई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1,30,000। ठीक है, ठीक है। ये हुआ। अब आया GMROI का परसेंटेज। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में देखो क्या हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज हमारा कितना है? 40%। ये तो देख गिवन है, ठीक है। और ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन परसेंटेज, यहाँ सेल्स टू स्टॉक रेशियो जो है हमारा निकला, सेल्स टू स्टॉक रेशियो दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हमने किया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। दिस इज दी फॉर्मूला। तो हमारा आ रहा है GMROI परसेंटेज इज योर 200%। ठीक है। तो मैम ये निकाल के ये एक्चुअली कैलकुलेशन किस काम में आता है मार्केटिंग में? मार्केटिंग में रिटेलर के लिए अभी हम आगे पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो हम लोग एंटायर पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर आप ये चीज़ समझो, इधर पे क्या इसका इम्प्लीकेशन क्या है? GMROI यहाँ पे क्या इसका इम्प्लीकेशन कितना आया? 2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिटेलर है ही इज गेटिंग 2 फॉर एवरी ₹1 इन्वेस्टमेंट। वो 1 रुपया खर्च कर रहा है, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वो देखो, the retailer is getting ₹2 for every 1 rupees he invested in this category। मतलब 1 रुपया लगा रहा है तो 2 रुपये उसके रिटर्न आ रहे हैं। तो GMROI like return on assets combines the impact of both profits and turnovers, and it helps compare and evaluate performance departments with different margins and turnover profile। अब देखो अल्टीमेटली ये जो GMROI है, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये हमको क्या हेल्प कर रहा है? हमको सीधा सा यहाँ पे समझ में आ गया ना, क्लियर समझ में आ गया कि मैं 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करके मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। इट इज लाइक दैट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, बट यहाँ पर इसका टोटल, यहाँ पे GMROI इज कैलकुलेटिंग इन टोटलिटी, प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर रहा है, टर्नओवर को भी कैलकुलेट कर रहा है, देखो। एंड इट हेल्प्स कंपेयर एंड इवैल्यूएट डिपार्टमेंट्स विद डिफरेंट मार्जिन्स एंड टर्नओवर प्रोफाइल्स। जैसे आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर ले लो या प्राइवेट लेवल ग्रोथ ले लो, जहाँ पे हाई मार्जिन है या लो टर्नओवर है। जहाँ पे हाई मार्जिन है, लो टर्नओवर है, वेयर्स ब्रांडेड क्लोथिंग हैज लो मार्जिन एंड हाई टर्नओवर। देखना आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जहाँ पे प्राइवेट लेवल क्लोथ्स रहेगा ना, उसमें मार्जिन हाई रहेगी लेकिन टर्नओवर लो रहता है। वेयर इज जहाँ पे ब्रांडेड क्लोथिंग रहती है वहाँ पे मार्जिन लो रहेगा लेकिन हाई टर्नओवर रहेगा। If the management compares and performance of the department and private level clothing with that of department with branded clothing using inventory turnover only, the private level will perform comparatively poorly। तो एक मैट्रिक्स पे कैलकुलेट करने से सिर्फ नहीं हो रहा है कि भाई, क्योंकि कोई किसी का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, कोई जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी एक्स है, प्रोडक्ट कैटेगरी एक्स में हमने देखा कि इसका टर्नओवर किसी का टर्नओवर ज्यादा है और किसी से प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिल रही है। तो आप कोई एक स्पेसिफिक चीज को लेकर नहीं काम कर सकते। दोनों पैरामीटर जो है, प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर, बोथ द पैरामीटर नीड्स टू बी ट्रैक्ड। दोनों पैरामीटर्स को ट्रैक करने की जरूरत है। GMROI, a profitability measure of return on investment, is used to compare and evaluate the departments, merchandise categories, vendor lines, and items. Though GMROI is a combination of gross margin and inventory turnover, the gross margin component of GMROI plays a vital role in deciding the pricing structure
whereas the inventory turnover component plays a more significant role when merchandise related decisions are taken. GMROI cannot be calculated without measuring inventory turnover. GMROI में इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री. क्या इन्वेंट्री, देखो दो चीजों पर ही फोकस है ओवरऑल. आप देखो GMROI पे दो चीजों पर ही फोकस है. हम एक सेगमेंट है या एक प्रोडक्ट लाइन है जिसकी प्रॉफिट हाई है, ठीक है, और दूसरा जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है. दोनों ही हो सकता है, अल्टीमेटली दोनों से ही मुझे प्रॉफिट आ सकती है. तो मैं अगर सिर्फ मैंने एक मैट्रिक्स को लूँ, आइदर इन्वेंट्री और प्रॉफिट, देन बोथ वे आई एम रॉन्ग. मतलब मुझे एक प्रॉपर असेसमेंट नहीं मिलेगा, एक परफॉर्मेंस का प्रॉपर असेसमेंट में भी नहीं मिले. ठीक है. GMROI cannot be calculated without measuring inventory. The process of measuring inventory turnover and various merits and demerits associated with the rapid rate of inventory turnover are discussed. अब देखो, अब इन्वेंट्री टर्नओवर को किस तरीके से हमको मेजर करना है, एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से मेजर करना है, इसका अलग एक पूरा टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे. नहीं तो आप एक दिन में कंफ्यूज हो जाओगे.